Good morning, students. Today we are going to discuss questions based on exercise 13.3. Okay, this is conversion of solids. Okay, 13.3 में please tell me whatever doubts. क्या है 13.3 एक्सरसाइज बेटा? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. जो लोग पढ़े हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जान रहे तो उसको आप समझ सकते हो. क्या है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड? वन सॉलिड आइदर मेल्ट और कन्वर्टेड इन अनदर सॉलिड. ओके, सो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड. चाहे वो कोई दूसरा सॉलिड है और दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आता. दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड. So on this theory we have solved some questions. Actually already I have told maybe one or two questions. So see exercise 13.3. Okay, question number 4 करते हैं बेटा. ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तक हमने कहीं बताया है. आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, मिल जाएगा. ठीक है, सो अगर नहीं भी होता तो आप हमसे पूछिएगा, बता. So a well of diameter 3 meter, okay, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है बेटा, ये बेटा जो बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप में एक रिंग के उसमें टर्म में स्प्रेड कर रहा है. ठीक है, तो वो इस तरह से हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ ना. रिंग है तो दो तरह के रेडियस होंगे. फर्स्ट रेडियस इज ऑफ कैपिटल आर, आउटर रेडियस. सेकेंड वन इज inner radius, small r. And what is the volume of that embankment? Pi capital R square. Volume of embankment is pi capital R square minus small r square into h. Okay, and that height you have to find. Height of the circular ring with 4 meter width. Form an embankment. Find the height of the embankment. You have to find the height of the embankment. So first of all we find the volume of earth. What? Volume of earth. Earth मतलब जो मिट्टी निकल रही. ठीक है, volume of earth. This is nothing but because of well. So this is what? And this is a cylinder. So pi r square, that means r कितना बेटा दिया हुआ है? डायमीटर इज 3 मीटर, सो 3/2. आपको पता है ना, सब कुछ बुक में दिया है ना. उसमें जो उसके डायमेंशन है वो बुक में दिया है. 3 मीटर दिया है क्या? डायमीटर. सो रेडियस इज 3/2 होल स्क्वायर इनटू हाइट. हाइट इज व्हाट? 14 meter deep. So this is 14. So if you calculate it, 22 by, no need to write the value of pi because this is equality. So 9/4 into 14. Okay, clear? So 2 to the 7, 9 7 the 63 pi by 2 centimeter cube. This is the volume of earth. That is by volume of earth which is spread out in the form of ring. So volume of embankment is pi r square minus r square. So according to question, pi capital R square minus small r square into h is equal to 63 pi upon 2. And what is capital R here? You know, the radius is 3/2. Okay, so otherwise diameter is 3. Okay, so width is what? 4 सेंटीमीटर ना. ये होगा कुछ, ये
आपको पूरा डायमीटर कितना दिया है 3, विड्थ कितनी है 4 इधर भी और 4 इधर भी, तो 4 4 8 3 11 हो जाएगा टोटल डायमीटर। सो रेडियस इज 11/2, 11/2, क्लियर? विच रेडियस? कैपिटल R, capital R is 11/2 and small r is that's 3/2. So this is pi cancelled out. Okay, so 11/2 whole square minus 3/2 whole square into h is equal to 63/2. बेटा आप इसको कैलकुलेट करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड इट एंड गेट द आंसर। कितना है बेटा? h की वैल्यू कितनी आई है? 1.13 मीटर। इसको कैलकुलेट किया इसी से, क्यों? सेम यही किया है। सो कैलकुलेट इट एंड गेट 1.13 मीटर। ओके, yes, R1 R2 you can write, no problem. That is the symbol, whatever you use, that's your matter. Okay, सिक्स्थ वाला बेटा हमने कल वाले वीडियो में बनाया जो आज अपलोड करवाएंगे हम। हाँ, तो आप देख लीजिएगा। बहुत इस तरह से क्या है ना कि हर क्लास में पढ़ाने से आपके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। जो यहाँ हो जा रहा है ठीक है, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियो। ओके, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। इसके बाद जो है आपको in question number 5 simply you can find the volume of container and divided it by the volume of one cone, you will get number of cones. In question number 6, okay, this is also you can find the volume of a cylinder that is melted, okay, and divided by the volume of coin, you will get number of coins. Only one thing is there, maybe for the coin height is given in millimeter, mm, है ना? So you convert it into centimeter. ये हमने आपको सॉल्व किया, वीडियो में आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी a cylindrical bucket 32 centimeter high and width radius of base is 18 centimeter filled with the sand. This bucket is This bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करो, खुद करो बेटा। हाँ, ठीक है, इसको आप लोग करिए अभी, देख लेना। Which question it is? Question number 7. So simple, volume of bucket is equal to volume of cone. That means sand. So volume of bucket, volume of heap, sand heap, no? Conical sand heap. ओके, बकेट के लिए डायमेंशंस क्या दिए हुए बेटा? थोड़ा हमको बोलना। 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सो पाई आर इज 18 सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर इंटू हाइट इज 32 and 1/3 pi, है ना? And for this R you have to find. R is given or R you have to find? And height is 24. So pi cancelled out. This 3, 18 into
32 is equal to into 3 also is equal to, otherwise 3 8s are 24 and here r into 8. Okay, 8 4 the, so 18 into 72 r square. Okay, r square is there, so r is square root of 18 into 72. आप देख लीजिए बेटा, ये 36 इंटू 36 कर सकते हैं, है ना, 2 यहाँ से लेके 36 इंटू 36, so r will be 36 सेंटीमीटर. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, अच्छे से कर ले इसको, नोट इट डाउन. और अनुज कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है इसमें? हाँ तो बोलो यार, तुम तो पूछ ही नहीं रहे हो. How much crossman? Can you do? How much crossman? तो बेटा इस तरह से आप बाकी सब कर लोगे. हाँ, छोड़ दिया क्या, कर लेंगे आप लोग? नाइन्थ वाला, हाँ ठीक है बेटा, बता देते फिर बताते आपको. क्वेश्चन नंबर 9, सी, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. Her field, which is 10 meter in diameter, 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? Okay? तो बेटा इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, मैथमेटिक्स में है ना. एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना. अगर हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात करें, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी. ओके, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की अगर फार्मर के पाइप की बात करें, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, 2 मीटर डीप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ cylinder tank, sorry, volume of tank. This is what volume of tank, 10 meter in diameter, okay, and 2 meter deep. तो क्या है ये सिलेंड्रिकल टैंक है ना, तो 10 मीटर पाई r स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू r इज व्हाट 10 meter diameter, that means 5, क्यों ना, into height is 2 meter deep, that means height is 2. So this is, या आप रख दो इसको पाई ही रख दो, 25 पाई into 2, है ना. This is the volume, okay, and volume per unit time is equals to velocity, area into velocity, okay. तो एरिया इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, बंद कर दीजिए. सो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, ठीक है. फिर एरिया ऑफ द बेस, मतलब वो जो पाइप से पानी गिर रहा है उसका हमने एरिया निकाल लिया. कैसे, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर 0.1. So after squaring we'll get 0.01 pi meter square. पाई को वैल्यू मत रखना, वहां पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी है ना, तो कैंसिल हो जाएगा. So supposed to be time taken is
टाइम टेकन इज टी, टी मिनट या सेकंड, टी यूनिट जो भी है. सो एरिया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और अगर आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, टी हो गया. तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इंटू मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना. सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर टैंक इन विच water is filled. So this is 50 pi. So T is equal to, you calculate it, you will get the value as 6 into 10 to power 3 second, because everything here 3 kilometer per hour, this can be also written as 3 into 5 by 18. Why? Because we can convert it to meter per second. Okay, so this will be 5 by 18 T and then 50 pi. So we will have T, the value of T is 10 to power 2 seconds. Okay, that means 100 minutes. So please note it down. So in this manner we have to complete this exercise. So tomorrow onwards we have to study about the frustum of cone. This is our last topic for this chapter. Okay, frustum of cone. Note कर लो बेटा इसको. लिख लो बेटा, अच्छे से समझ लेना. इसके लिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको यही फॉर्मूला, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा क्या क्या कर रहा है. नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना. एरिया इंटू वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वन टाइम. तो एरिया से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हुआ तो वॉल्यूम बन गया, और टाइम डिवाइड हो रहा है. ये तो फिजिक्स का डेफिनेशन, अगर टाइम को 1 कर दो तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. क्लियर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज एरिया इंटू वेलोसिटी. अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे. क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है ना. एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो जिसमें भरना था उसका वॉल्यूम निकाल लिया, जिससे भरना था उसका हमने क्या किया, एरिया निकालिए क्रॉस सेक्शन का. उस तरह से कंप्लीट हो गया बेटा. Yes, sir. So thank you for today.